yards away from the action, but we'll have a look in the replay in a second. You still got good eyes. Come on. Can Pakistan drag another wicket at this moment? Now this is great timing. Nothing wrong with this shot. Look at that distance. Second tier of the set. No fear for that man. That was in the slot and just using the feet nicely, coming up the order, everything working for Jadeja. Look at that power going into the shot. Nice follow through, 98 meters. What a hit. Mighty hit into the second tier. 98 meters. Now then, still in attacking mode Jadeja. 3 wickets down, required run rate 8.5. Now the match is living up to its billing. Halfway stage we thought a bit of a dampener. This is match on. Get a single and they're making that move. Sending Jadeja up just to disrupt things. It's worked for now. Will Babar give one over to Iftikhar if the left-hander facing? Why not? 87 of 61 required, 7 wickets in hand for India. Shadab to continue, 2 overs. He's only given away 6 runs. It's incredible. Win predictor, chance of winning. Single of the last ball of the over, 10 overs gone. It's 62 for 3. सोच मत, खुद को रोक मत, लोगों की नहीं, दिल की सुन, सपनों को पंख दे और खेल जा। फेयर प्ले न्यूज़, खेल जा। इन खेलों में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। Problem? No problem. No business problem is big enough if you learn how to solve it using data. Data science program from Scala. So far, 62 for 3. The first wicket came off the first ball of the innings. Virat Kohli got a chance. Second slip, dropping that cat there. Chris Zaman was the fielder. Saw him play a couple of backward shots. One streaky, couple very good. Front foot drive always in his armory. That was a terrific shot. Best of the innings. Rohit Sharma after miscuing one. Clean that up, and then in trying to repeat the act, Mohammad Nawaz keeping the ball in the same slot from where he was hit for a 6, and then this happened. You're right, maybe trying to go over extra cover, maybe at the last minute just held himself back. Jadeja, I guess, showing people this is the way to do it. The batting to come after this Dinesh Karthik, Hardik Pandya. Then of course you go into the lesser batters. I guess Bhubaneswar will come before Chahal. There are still 4 good batters left for India. So Pakistan must be thinking 1 or 2 more wickets and we can actually win this game. Look at Naseem Shah spell, 2 overs, 8 for 1. Dhani bowled well as well, 13 runs in his 2. Harish Rauf, 13 in his 2. And the pick of the bowlers so far, Mohammad Nawaz, 2 for 18 in his 2. Official host of this Asia Cup are Sri Lanka. Something we keep reminding you, and of course, if you've been to Sri Lanka, you want to go there again. These are just spectacular sights. Those whales, you can watch it bowl.
spectacular travel destination full of unmissable experiences. Interesting that we've got Shadab bowling his third over. You think could have been just held back because there's Jadeja at the other end and maybe get him back again when there are two right-handers? Maybe bring in Iftikhar for an over or so, because he's an off-spinner, as Wasim Bhai just said, that, you know, with Jadeja at the crease, take the ball away from him rather than giving him those deliveries coming in. I think you'll see Shadab will also look to bowl those googlies like that. Read it quite nicely, comfortably played. I think Pakistan won't mind those singles, but they don't want to leak boundaries. I guess chance of winning 71% is because of the kind of batters that are batting together, the current form, Hardik Pandya and Dinesh Karthik to come. That was still the 7.5 overs. It was long ago. They've lost 2 wickets since then. Must have changed. The stat have lost me as well. Another dot ball. Wickets for Pakistan here. They're bowling well, the spinners. Good comeback by Pakistan in this game so far. He's the danger man. Great shot. The famous sweep shot of Surya Kumar Yadav. How good is with that shot. The power that it generates is incredible. He looks so calm. There's no kind of pressure on him. He just picked it up from middle stump, a leg break he picked it up, and he knew there was a fielder there. He was just in front, and he played it between short fine leg and square leg fielder. Beautifully played. Treat to watch this guy, Surya Kumar Yadav. Yeah, it's very risky, isn't he? And you saw him sweep, and he's just bringing his wrist into play. Even when he play on the offside cover drive or playing toward the backward point, he just brings in his wrist quite a bit. It's hard to bowl at this sort of batsman. Fantastic player all around the ground. He's got great hands, good hand-eye coordination. Then he has the drive as well along with the sweep shot. 69 for 3. The new Britannia Biscafe, a coffee cracker that's so thin, so light, so crisp, it simply melts in your mouth. Britannia Biscafe, the perfect partner to your coffee. You know the toy. The actual Buzz Lightyear in the flesh. At this stage of the game, Pakistan was 76 for 2. And in reply, India 69 for 3. So they are a little ahead. But if you have 7 wickets in hand now, they need 79 runs of 54. And Pakistan must be thinking wickets here. A couple of wickets right now can change the course of the game. It's a pack house here. Big game. So Mohammad Nawaz as well bowling his third. So he's just bowling spinners out. Even with the left-hand batter out there. Doesn't mind giving him that extra over. Oh, that's one of the shots that he loves to play. He loves exploiting that area behind point on the offside. Sanjay, I feel that this is going to be a big over, either for Pakistan or for India, because the run rate is sort of creeping up close to 9 now. And India probably thinking that once the spacers come, it might get a little bit more attacking in this over. Intelligent bowling from Nawaz. This delivery was slightly quicker and towards middle leg. The batsman can just take a single. This guy has just been sensational. If you watched him the last year or so, that 100 that he got
against England. And England recently came at a strike rate of over 200. Second best strike rate in T20 International, 117. That's the innings that we're talking about. Surya Kumar Yadav is currently batting in a different space. I know there are some bigger names in this team, but his current form is just unbelievable. Wow, what a shot. That's a scorcher. That's four. This is the over like Vakar just mentioned. Jadeja will have a go at him. He got the much needed boundary. Off spinner would have been ideal. Just for one over. Along the ground, beautifully played. No risk involved whatsoever. It doesn't matter, you go around the wicket or over the wicket. When this man decides to go after you, he will come after you. Forces the bowler to go short. And that's why India have this aggressive approach no matter what. Also like the fact that Jadeja is now being used more as a batting all-rounder. Bowls just a couple of overs. Akshat Patel, you would say, is a bowling all-rounder. Bowls is 4 overs. And I like this promotion as well, giving him more batting responsibility. Full marks to Pakistani bowlers so far. They've done a great job picking up 3 wickets and keeping things under the lid. Yeah, good delivery. Another very fine delivery. A little bit of spin and a bit of bounce. Seven runs so far from the over. Required run rate 8.82 to be exact. Rizwan is helping his skipper with the field setting. He's got the best view, best angle behind the stumps. Last ball. Overs gone. It's 77 for 3. Let's 1xBet. Pump it out. Let's 1xBet. Catch your eye. Let's 1xBet. Do we try? We are enjoying the game tonight. This partnership, very, very important for India. 24 of 17 unbeaten. Jadeja and Surya Kumar Yadav. Jadeja has been promoted at number 4. To counter the spinners, the only left-hander in this Indian top order. That is a bit of surprise for me, Deep, that India playing with only one left-hander batsman, and those two is an all-rounder who bowls also. Bats at number 6 or 7 most of the time, but he's been definitely promoted up the order because thinking of the left armour. Mohammad Nawaz so far has bowled quite nicely. He's picked up 2 wickets for 26, and he's the man who's going to look to counter him. And Irfan chances as well now. And I think why they have only one left-hander is because of Dinesh Karthik. Dinesh Karthik's form has been outstanding, especially the kind of role he's playing. He's just coming in after 15th over and he's just smacking the ball from the first ball. And you need someone there at the end finishing the game, and he has shown that form in the IPL and the few games he played for India. He's got the experience as well. Yes, I like Rishabh Pant. He's a future superstar. He's already done some outstanding things for Team India, especially in the longer format. That's a good shot as well. For 2 runs, square cut. He loves it. He loves the beat. He loves to play on the
square on the offside, on the leg side, Surya Kumar Yadav, but back to the point, deep end, Waqar bhai. Having to go with the form is important, especially in a bigger tournament like Asia Cup, World Cup. Left hand, right hand, that doesn't matter as long as you have form. And I think left and right hand combination works, especially in the middle overs. If the ball is gripping too much, if the ball doesn't grip, it doesn't matter. And sometimes the things actually go in a wrong way. Suppose if you're a left-hand batsman and if you're playing against left-arm spinner, if the ball doesn't turn, if it's going the other way, it can actually work against you rather than it just comes in. So I think form is the key. And that's what, and I really back this team. This top 7, if I'm there in the team management, I'll play this playing 11, especially the top 7 batters, till the World Cup. Well, fair enough. Top 7 till the World Cup for you, Irfan. But then you also mentioned for a big tournament, form is the key. You've got another couple of months to go before the World Cup. Absolutely, but you've got to look at what's happening right now as well. Like, form is the key, especially when you're trying to finish the games. Look, if you talk about Virat Kohli doesn't have a form. He needs to get the form. And I've been telling this, if by the time the World Cup comes in, he's got a form, you need to carry him. If he doesn't have a form, you need to find an option as well. Same with KL Rahul, who hasn't played, but they're playing at the top of the order. Finishing the game is a proper position, and not many can do it. Fair point. I think we might continue with that topic in the next over. Meantime, it's 83 for 3. ये हम कर लेते हैं, आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। कुछ नए सफेद बालों के लिए नया स्ट्रीक्स टचअप है कलर मिक्स टचअप वॉश 10 मिनट ग्रेज गायब। स्ट्रीक्स टचअप सिर्फ 15 रुपए में। It's been an amazing game so far. Initially, obviously, Pakistan did not get to a score where they would have liked to. I'm sure they would have wanted to get to 160. Managed only 147, but the Pakistani bowlers will have done that in the past as well. Doing it again here. Making sure India does not get away too easily. 83 for 3. Game's on. After 13 overs, actually Pakistan were ahead. Both the teams have lost 3 wickets at this stage, but Pakistan were at 90. But going back to that, the point that we were discussing, Irfan, last over, my only concern is, if you've picked your 7, I go with them irrespective of how they are playing, because somebody loses form a month before the tournament. I don't want somebody new coming in. It'll be extremely difficult and maybe unfair to a certain extent as well. Absolutely, but coming into form and losing form, 2 different things. Virat Kohli looking for a form. He was not in form. Here you're talking about Dinesh Karthik, who might miss out in a couple of matches back to back because he's playing that role. He will come in, he'll just have to go from the first ball. And it's a difficult job. Not saying that Rishabh Pant can not do that job, but right now, who's doing a better job? Dinesh Karthik will come in and play the spin as well as the fast bowlers as well. That's a fantastic shot. Use the pace, but luckily for Pakistan, the third man is slightly inside. Also got to give credit to Rizwan. He got a hand to it. But again, going back to that, and we got to keep it short here, Irfan, because this is a fascinating topic. And for me, it's not about an individual player. It's about a policy or philosophy of the side, whether you follow it or you not. And whatever it is, you've got to be consistent. Vicky Baji, you've been coach of the Pakistan side. You've been from a coach's perspective. Would you agree that it has to be the same, the philosophy or the policy or thought process of the side? Did he get anything on that? Tahani looks extremely confident, but Nazir isn't backed up by his keeper. Just one question to Waqar bhai, because of this right and left hand combination we were talking about.
What would you rather have, right and left hand combination when you're bowling, when the ball is swinging and when the condition is not there and when the ball is not swinging? What is easier for you? Because having to change right and left hand combination when you're bowling, sometimes when the ball is swinging can be a bit more difficult task, but when it's not swinging, sometimes having to bowl that line in terms is easier. There's something happening out there. Shadab says that he has heard something. Maybe you have to take it. Just take the punt because you still got reviews left. Yes, I think it's a wise move. If they've heard something. TV umpire to director, we have a player review for caught behind. Original decision is not out, and it's a fair delivery. Start with the front on spin mission, please. Give me the ultra edge, please. Copy that. Mukul, ultra edge is building. It's coming now. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Yes, fat line, satisfied, no bat involved. Go back to on-field umpire, Mukul, please. Yeah, Shadab heard it for sure, and he kind of convinced both the captain and the wicketkeeper to go for it, but he's standing in point. Anyways, Pakistan lose a review there. Yeah, it was pretty close to the gloves though, but nothing on the third umpire's case. It is a straightforward decision. Well, let me just answer what Irfan just asked me regarding if it's swinging, then is it easier, left and right hand, how are you going to bowl? It varies for every individual. I feel that if you feel comfortable that it's swinging, that you want to bowl to the right-handers only, some bowlers are happy with that. But for me, if it's a left-hander or right-hander, if the ball's swinging, I'm happy. I don't have problem with that at all. I'm happy to just... The thing is that I have to really pitch it up and just start sort of look to just make them come forward rather than going backward, back on the back foot. That extra adjustment. Yeah, because I feel for me, if it's not swinging, if there's left hand, right hander, I'm in trouble. I don't into the right hander or left hander, I can bring it back in with the angle if it's not swinging. But to make angle on our pitches where we have we don't really get these sort of green pitches in our part of the world. This is the first time I'm literally seeing in UAE that so much grass being left not only on the pitch but also on the square. It's very green. It's normally pretty brown, no real grass. They sometimes put grass on it, put some water on it and roll it in to make us feel good. The curator is an Aussie. Likes the grass. It's definitely a good pitch, extra bounce, even though you might say that compared to yesterday, which we had seen the pitch between Afghanistan and Sri Lanka, this is slightly drier, but still a lot of grass, extra bounce as well, even bounce, which is fantastic for white ball cricket. Longston, the head curator here, he's done a fabulous job. Obviously, we've been meeting quite often now in the last couple of years. A lot of cricket played here. The amount of cricket that's played here at this venue on these surfaces, and he still managed to give these really competitive pitches where there's really good contest between bat and ball. A lot of credit to him and his team.
close to the stumps for that delivery. Get a single to finish the over. Surya 89 for 3 after 13. पैसे तो आते जाते रहते हैं, but we are like family, Karan. इंक्रीमेंट के नाम पे भी खेल जाते हैं। बॉस, इंडिया में हर कोई खिलाड़ी है, तो चलो असली गेम खेलते हैं। अड्डा 52 पर पोकर खेलते हैं, खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। Where India need 59 of 36. Required run rate closer to 10 and over. With 7 wickets in hand and 2 set batters. It's very, very achievable for India. Now this partnership is so crucial. That counts 36 of 30. 2 set batters. With Hardik to come and TK to come. It's looking all right, India, at this point in time. Bit of a recovery from where from a Pakistan perspective. Need a wicket. That's the reason Babar Azam looking towards his Tahani, last over, and Naseem spell. Yeah, it's good to see the mix in the crowd. You see blue shirts, you see these green shirts, and you see a lot of colors. And that's what you get here in UAE, because a lot of expats, they come and they live here, and more blue though, but I have to be fair here, but definitely lot of shirts you see which are green, caps are green, so, and they live very happily together here in this part of the world. Look at that. That's what you want to see. Any age does not matter. Enjoy your cricket. Since 2:30 afternoon, the game started. Including the fans and including some of the broadcasters. Including yourself, Irfan. Chance of winning India, 54%. You got to agree, gentlemen? 54% India at this point in time? Okay, this is a hard one. This is a very hard one. 50-50, I would say, because it's, look at the required run rate. That's where I'm keeping a very close eye on. Because Naseem Shah is back on, and Pakistan looking for a wicket. And they got it! This is a beauty! Wonderful delivery, good length, coming in, taking the off out. He bowled the first over really, really well. Now he came back. Come on. Did something happen to you? What does it feel like? Cosmic. बहुत ही कम समय में गलत गेंद ढूंढी, ऐसा लगा कि शायद बैक ऑफ द लेंथ गेंद का इंतजार था, गेंद थोड़ी सी हल्की आगे पड़ी, प्रयास कर रहे थे वो स्क्वायर लेग के ऊपर। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। भारत की उम्मीदों को अपने कंधे बैठी विकेट्स, वो बॉक्स टिक किया, उससे भी कहीं ज्यादा हार्दिक पांड्या की विकेट, बहुत बड़ा प्राइस टैग। थोड़ा सा स्ट्रगल किया था नसीम शाह ने उस गेंद को डालने के बाद, थोड़ी सी ट्रीटमेंट ही, लेकिन एक बार फिर से तैयार रन अप के टॉप पे। काबले ने एक बार फिर से करवट लिए और क्रॉस गए थे, स्टंप्स के थोड़ा सामने थे, फाइन खेला, लेकिन फाइन एफर्ट शाहनवाज धानी का भी। 2 रन मिलेंगे हार्दिक पांड्या को।
वो फाइन लेग फील्डर भी बहुत फाइन था, इसलिए चौका बचा पाए। तो फास्ट बॉलर अगर आप हो जैसे उमरान मलिक है भारत के, तो सीधा और तेज दोनों विकेट उनको बोल्ड मिली है। शायद लेंथ ज्यादा आगे थी। मैंने देखा नहीं सूर्य को ये शॉट खेलते हुए, जिस तरह का प्रयास उन्होंने किया, इसलिए जाना चाहिए बॉलर को। फिर क्रॉस गए, क्या थोड़ा जोखिम ज्यादा है इस शॉट में संजय? अगर आप तेज से बीट होते हैं, हल्की सी भी गेंद शरारत करती है, हल्की सी भी, तो आपके पैड्स एकदम स्टंप्स के सामने है। और ये पिच हमने जो देखा है उसमें थोड़ा सा डबल पेस है, कई गेंदें उतनी तेज नहीं आ रही। सूर्य गए, ये बड़ा झटका है भारत के लिए, तो अब थोड़ी सी टेंशन महसूस करते होंगे जरूर फैन, लेकिन अभी भी काफी बल्लेबाजी है। जाडेजा है, हार्दिक पांड्या जो अपने लाइफ का बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर हमारे कैमियो स्पेशलिस्ट है जो कभी कभी 270 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो अभी भी ये मैच भारत को जीतने के लिए उनके सामने है ये मैच। स्लो बॉल, इसको पिक किया रविंद्र जाडेजा ने, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। ये वादा किया था इस मुकाबले ने कि ये कांटे की टक्कर होगी, ये ग्रेटेस्ट राइवलरी, और वादे को पूरा करता हुआ। लेकिन इसके बाद भी, इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप के बाद भी भारत के पास 6 बहुत अहम मुकाबले हैं खेलने को। इस समय सबकी नजरें इस मुकाबले पे, इस प्रतियोगिता पे, आप कॉन्टिनेंट में बेस्ट होना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी अभ्यास मिलेगा। टीम का नक्शा एकजुट होकर खेलने के लिए 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, 3 मैचेस साउथ अफ्रीका। कट किया है, लेग किया है, सही जगह पे किया है, बैकवर्ड पॉइंट बीट किया, चौका। हार्दिक पांड्या की पारी का पहला 8 रन और 1 विकेट, 15 समाप्त, 97 पे 4। एज अ मैच, एज अ फिनिशर के रोल में जब आप रहते हैं, किस तरह से आप अपने नर्व्स या जो सांस है उसको कंट्रोल करते हैं, तब आप अच्छे डिसीजंस लेने में सफल होते हैं। या लग रहा था एक बड़ा गैम्बल खेला है गुजरात टाइटन ने जब इनको कप्तान बनाया, लेकिन गैम्बल इतनी बढ़िया तरीके से वो पे ऑफ हुआ है, और भारतीय क्रिकेट में एक फायदा मिल गया कि इनका टेम्परमेंट भी एक अच्छा भारत को मिल गया। कला तो उनमें थी। स्पिनर का अगला ओवर कैसे देख रहे हैं आप दोनों, या रोकेंगे अभी? नवाज का एक ओवर जो निकलवाना पड़ेगा बाबर आजम को। थोड़ी एक्साइटमेंट में मोहम्मद रिजवान के हाथ से ये गेंद निकल गई। अंपायर पे फोकस करते हैं, इस तरफ उनका इशारा 22 का। थोड़ा मुझे लगता है रुकेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर बुलाने के लिए, क्योंकि है केवल 5 बॉलर्स, छठा बॉलर यूज नहीं किया है। तो जब तक जाडेजा है शायद मोहम्मद नवाज नहीं होंगे। जब एक नया राइट हैंडर खिलाड़ी आए तो उनको लाएंगे। रविंद्र जाडेजा 2020 से अगर आप देखें तो उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस बदल गई है। स्ट्राइक रेट भी देखिए, और काफी इनिंग्स है। 2019 22 इनिंग्स, शायद कुछ हुआ 2019 में। वाइड्स के आपको रन मिले, एक आपको और गेंद मिली है। 9 रन इस ओवर से। फुल शॉट, गैप में जाने की उम्मीद थी। 10 रन इस ओवर से। 41 चाहिए 24 गेंदों में।
41 चाहिए, 4 ओवर, ये 4 ओवर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2022 टॉस जीतो मैच जीतो, ये कहानी चली थी, लेकिन ऐसा है नहीं। 147 बनाए हैं पाकिस्तान ने, भारत अभी 41 रन दूर है। हार्दिक पांड्या के साथ जाडेजा मैदान पे मौजूद। ग्रुप ए इंडिया, पाकिस्तान और हांगकांग। ग्रुप बी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मुकाबला जीत चुका है, श्रीलंका थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगला मुकाबला बांग्लादेश अफगानिस्तान का शारजा के मैदान पर होगा। ये 30 तारीख को मुकाबला, फिर भारत और हांगकांग 31 को मिलेंगे। श्रीलंका और बांग्लादेश, मुझे लग रहा है वो नॉकआउट मैच होगा। अभी तो चेहरे पे मुस्कान है। कोहली, रोहित, 2 वरिष्ठ भारतीय खिलाड़ी, एक कप्तान, एक पूर्व कप्तान, एक दिल दूसरा धड़कन। ये बैटिंग रॉयल्टी है ये। हारिस राव की ये थोड़ी बॉल स्टार्ट हो रही है। ये सुपर 4 में क्या होने वाला है देखिए। B1 वर्सेस B2 का पहला मुकाबला ये शारजा में होगा 3 सितंबर को। A1 A2 बहुत चांस है कि इंडिया पाकिस्तान हो जाए, तो वो दुबई इसी मैदान पे वो संडे को नजर आएंगे। फिर A1 वर्सेस B1, A2 वर्सेस B2, और फिर जो फाइनल है, फिर हम तो कह रहे हैं कि जो टॉप 2 टीम्स रहेंगी 4 में से, वो फाइनल में खेलेंगी। अफगानिस्तान एक बढ़त बना चुकी है, श्रीलंका को ना सिर्फ हराया बल्कि नेट रन रेट को वो बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप फ्लोर तक पहुंचाया। तीन चार बार रुके थे, आधे रास्ते से वापस गए थे, इतना सब कुछ वाइड के लिए। एक रनों की कीमत। और आकाश, ये जो मैच अभी जहां पे पहुंचा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबर आजम ने वो एक ओवर नवाज का बचा के रखा हुआ है। लेफ्ट आर्म स्पिनर, सामने जडेजा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या को पसंद है स्पिन, वो कब डालने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है वो ओवर इंडिया के फेवर में जा सकता है। जरूर थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बड़े शॉट खेलने का मौका जरूर है, क्योंकि फास्ट बॉलर क्या कर रहे हैं, वो दूर वाली लेंथ हिट कर रहे हैं, आपके हाथ में नहीं दे रहे। तो ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, गेम बन सकता है। मोहम्मद रिजवान, ये गजब कीपर है। मैंने एक बार नहीं देखा कि इनके हाथ में गेंद गई उन्होंने अपील ना की हो। मतलब देखे हैं थोड़े एक्साइटेड कीपर्स, पर ये ओवर एक्साइटेड है। देखना एक बार फिर, और बैट बॉल का कोई मिलाप नहीं है। ये बॉल पकड़ते ही अरे बाबा, तो सही है। अगला ओवर मैं कहता हूँ नवाज से करा लीजिए, या फिर आप इंतजार करेंगे जड्डू आउट हो तो कराएं गेंदबाजी, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। 20 ओवर तो नहीं कराना चाहते। मैं तो कहता हूँ जब भी कराइए। ये दोनों बल्लेबाज इंतजार कर रहे होंगे नवाज का, चाहे अगला ओवर हो या उसके बाद हो सकता है विकेट भी जाए, लेकिन आपको बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसानी होगी। वहीं पे मुझे लगता है गेम बनेगा भारत की तरफ। अभी जो रिक्वायर्ड रेट है वो 11 की तरफ दौड़ता हुआ। जीत की संभावना 62% हो गई है। 7वें ओवर में भी कुछ ऐसी ही थी, फिर नीचे गिरी। ये गजब शॉट है, उतनी अच्छी फील्डिंग भी है, लेकिन 2 रन आसानी से होंगे। और ये संभावना इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर साझेदारी 20 रनों की हो चुकी है, 22 रनों की माफ कीजिएगा, जडेजा खेल रहे हैं, हार्दिक खेल रहे हैं, ये दोनों फॉर्म लेके आ रहे हैं, साथ ही में दिनेश कार्तिक का फॉर्म भी है, तो इसी वजह से वो संभावना वो ज्यादा। ग्लोबल इकोनॉमी की तरह चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। स्टॉक मार्केट आप अच्छे से पहचानते हैं। डिविडेंड किसको मिलेगा उसका थोड़ा इंतजार, इन्वेस्टेड रहना होगा इस साझेदारी को। टिप्स ले रहा हूँ इनके साथ बैठ के, मुझे आइडिया नहीं इन चीजों के बारे में कुछ भी। और ये देखिए माहौल, एक तरफ है पाकिस्तान के सपोर्टर्स और दूसरी तरफ वो भारत की दहाड़। हारिस रऊफ, शॉर्ट गेंद, एक तो आसानी से मिलेगा, एक ही मिलेगा, दूसरे की सोच भी नहीं पाली है।
फुट पे धकेलने की हार्दिक की ये पाकिस्तानी गेंदबाजों की पूरी कोशिश, और खेल के बीच में थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए दोनों खिलाड़ी रिजवान, हार्दिक। देखिए वो पहले मुझे दर्शक दिखे जिनके वो चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, मास्क पहना था उन्होंने। उसके बीच में भी आपने इमोशन देख लिया, बड़ी बात है। वाइट 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 वाइट, यस वाइट। पहला गेंद जो इस ओवर का था वो भी वाइट थी। देखिए दिशाहीन गेंदबाजी इस मैच की दिशा को बदल देगी, ये मोड़ देगी भारत के पक्ष में। पाकिस्तान का सामने से जज्बा, ये जज्बात क्या बात है। खेल तोड़ता नहीं है, खेल जोड़ता है। और ये गेम जहां पे अभी खड़ा हुआ है, दोनों ही फैंस को लगेगा कि हम जीत सकते हैं, उस तरीके का ये गेम। अच्छा शॉट है ये, पीछे फील्डर मौजूद है, रन एक, जड्डू दूसरे का चांस, दूसरा ले लिया क्योंकि थ्रो उतना सटीक था नहीं। ये दोनों सिर्फ अच्छा नहीं खेलते पर भागते ही बहुत अच्छा। हार्दिक तो तीसरा रन भाग गए, वो एक तरफ वो आधा ग्राउंड उन्होंने तय कर दिया वहां पर। ये दोनों की खास बात है, तेज भागना, अच्छी साझेदारी। यहाँ पे बॉलिंग कोच शॉन टेट, ये भी शॉर्ट गेंदबाजी करना पसंद करते थे। ये पिच भी कुछ उसी तरह से है, अगर सिर्फ बात करें उछाल की भी तो, और कुछ हद तक बल्ले का इस्तेमाल भी देखने को मिला दोनों ही तरफ के गेंदबाजों के द्वारा। अगर जिसे तेज गेंदबाजी पसंद है तो उसके लिए ये मैच कमाल का रहा अभी तक। और उसके बीच में नवाज 2 विकेट चटका गए। अरे यार, select the best network. Does something happen to you? What does it feel like? Cosmic. अतिरिक्त फील्डर सर्कल में लाना पड़ सकता है। इसी स्टेज पे था भारत जब वो एक अतिरिक्त फील्डर अंदर लाना पड़ा था क्योंकि समय का अभाव था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान भी थोड़ा सा फंस रही है क्योंकि एक निर्धारित समय है, उसमें आपको अपने ओवर्स डालने हैं। अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर जितने मिनट्स बचे उतने ओवर्स में आपको एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में रखना होगा। और भारत 3 ओवर पीछे था। चलिए ये लीजिए, 1 2 3 4 5वां सर्कल में हुआ तो फिर हो गया काम। 3 ओवर भारत ने एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल में रखा था। यहाँ पर फिर वही नजर आ रहा है मुझे, नसीम शाह। हाँ जी आ गया, 5 खिलाड़ी सर्कल में। अब आखिरी जो 18 गेंदे हैं आपने वही गलती कर दी जो भारत ने की थी। तो फिर 2 तरीके होते हैं सीखने के, हिस्सा बराबर। तरीके 2 ही हैं, या तो खुद ठोकर खा के सीख लो या दूसरे की ठोकर से सीख लो। इन्होंने कहा नहीं जी हम भी वही करेंगे। ठीक है, और इसी
इसी वजह से मुश्किल भी हुआ था आखिर में, जब 19 रनों की वो साझेदारी थी पाकिस्तान की तरफ से। बड़े बड़े शॉट लगाना उनको कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। भारत भी उम्मीद करेगा उसी तरीके से फायदा उठाने को, क्योंकि एक फील्डर अगर 30 गज के दायरे में अतिरिक्त होता है, बल्लेबाजी कंपैरेटिवली आसान और गेंदबाजी पे ज्यादा दबाव। वाइट पिछले ओवर की राहुल वापसी कर रहे थे, उम्मीद थी कि फॉर्म आएगा, जल्दी आउट हुए। अतिरिक्त फील्डर सर्कल में, यानी कि रिक्त स्थान बहुत हैं, उनमें चौके भरने हैं। ये दम रखता है खिलाड़ी। इस ओवर की ये पहली लेजिटिमेट गेम थी और 5 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। 17 में अब चाहिए 27। सर रविंद्र जडेजा कहा था गेंदबाज दबाव में, एक अतिरिक्त फील्डर, जानते थे रविंद्र जडेजा आगे की तरफ बढ़े और ये खूबसूरत चौका बटोरा। अब सिर्फ बतौर बल्लेबाज अब यही चाहेंगे कि सिर्फ 2 चौके या 2 छक्के आ जाए, तो जो अंतर है 17 गेंदों में 27 रन, वो अंतर खत्म हो जाएगा। काफी खत्म तो हो गया है, क्योंकि एक नवाज का ओवर है। नवाज का ओवर बिल्कुल वो पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं बाबर आजम। ये अच्छी गेंद थी। ये कुछ दिक्कत हुई है। ये नसीम का थोड़ी सी हिस्ट्री भी है इंजरी को लेकर। आज गेंदबाजी अच्छी की है, 2 बड़ी विकेट्स चटकाई हैं। पहले केएल, फिर सूर्य कुमार यादव। फायर शारजा, ये परसों मुकाबला है। बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहला मैच जीत चुकी है, श्रीलंका को नेस्तनाबूद कर चुकी है। शाकिब अल हसन की कप्तानी में ये बांग्लादेश की टीम खेलेगी। आफीफ हुसैन अब इस टीम के उप कप्तान बन चुके हैं। मुशफिकुर रहीम शायद ऊपर बैटिंग करने आएंगे। अहमदुल्ला रियाद वहां नजर आएंगे। मुसुम अहमद, वो देखेंगे कैसी करते हैं गेंदबाजी। नहीं, परेशानी है, ये थोड़ी दिक्कत है, हैमस्ट्रिंग है। ये देखिए कुछ खिंचा तो जरूर, क्योंकि जब वो विकेट ली थी सूर्य कुमार यादव की, बोल्ड निकाला था, वो सेलिब्रेशन में जहां तक पहुंचे थे, उसके बाद वो पैर से थोड़ा उन्हें तकलीफ हो रही थी यहाँ पे। उसके बावजूद भी गेंदबाजी करते हुए बहुत दिक्कत में। देखिए अगर आप भाग पा रहे हैं, आप गेंदबाजी कर पा रहे हैं, ये स्ट्रेन नजर नहीं आ रहा, शायद ये क्रैम्प हो, क्योंकि स्ट्रेन अगर हो तो फिर आपको वो भागने ही नहीं देगी आपकी हैमस्ट्रिंग या काफ। बिल्कुल सही कहा। देखिए गति इनके पास है, शॉर्ट बॉलों का अच्छा इस्तेमाल है। जो स्टंप्स पे जाके लगी गेंद, ये आउट है। ये 3 स्टंप्स के सामने लगी है, 3 स्टंप्स के सामने लगी है। डीआरएस का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये बॉल स्टंप्स में पिच हुई है तो फिर ये बिल्कुल आउट है। TV umpire will direct us. We have a player review for LBW. Original decision is out and it's a fair delivery. Start with the front on spin motion, please. Yes, ball is close to the bat. I'll try to confirm whether any batting mode there, please. Keep it rolling through, keep it rolling through, keep it rolling through. Satisfied, back line as the ball passes the bat. No batting ball, ball tracker when it is ready, please. Waiting for ball tracking us. Pitching outside leg, go back to on-field umpire Mukul, please. Mukul, you need to reverse your decision. Out to not out. Thank you. आजकल तो डिसीजन रिवर्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है पिछले 2 दिन में। बच गए। तो देखिए इसलिए भी बहुत जरूरी था कि सेट बल्लेबाज आउट ना हो, क्योंकि नए बल्लेबाज के लिए आते इतना आसान होगा नहीं। इसी वजह से जडेजा को ये जीवन दान और भारत को राहत की सांसें। #थैंक यू DRS। दीपक हुड्डा को भेजा गया अंदर किसी संदेश के साथ।
जो माले वो कहते हैं ना, वो संदेश वाले कबूतर होते हैं पहले, तो ये हम सब टीमों में हमने रोल अदा किया है। और शार्दुल ठाकुर गए थे, ये सिडनी का मैदान था, वहां बता कर आए थे किसको कैसे खेलना है। उन्होंने कहा जाओ यार, इट्स ओके, वील फिगर इट आउट। बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा थोड़ा नॉर्मल खेलिए। वहां पे अश्विन को संदेश मिला था, यहाँ पे तो अश्विन खुद संदेश देने आए हैं। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2022 ग्रुप स्टेज, ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, हांगकांग क्वालिफाई होके आए हैं। हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग ये ग्रुप है क्योंकि अफगानिस्तान की जीत के साथ श्रीलंका के ऊपर दबाव। अफगानिस्तान अगला मैच जीता तो थ्रू, अगर हारता भी है तो भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है। टॉप 2 टीम्स जो है वो सुपर 4 में पहुंचेंगी। A1 वर्सेस A2, ये एक रिपीट ऑफ टुडेज गेम हो सकता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यही मैदान। और फिर A1, B1, A2, B2, अब ये पता चलेगा कौन कौन कहां पहुंचेगा, पर फाइनल यही है 11 तारीख को। और वो भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान, आज तक नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। और ये कमाल का मुकाबला हुआ है। हमने राइवलरी की इतनी बात की, लेकिन ऐसा ही तो मुकाबला आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का, कि ज्यादा स्कोर ना हो लेकिन उसके बावजूद भी कांटे की टक्कर हो। मैं कह रहा हूँ इतनी बार अगर वो राइवलरी हो जाएगी, एक टूर्नामेंट में 3 बार मिलेंगे तो फिर राइवलरी हो जाएगी फिर, क्योंकि राउंड 2 फिर राउंड 3। मैदान पे कभी नहीं, मैदान में आपको जस्ट उतरना है तो जज्बे के साथ उतरना है, जीत के जज्बे के साथ। 1 2 3 4 5 खिलाड़ी सर्कल में, फाइन लेग थर्ड मैन दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। नसीम, ये शॉट सामने सामने सामने, 6 रविंद्र जाडेजा। दुबई में इनके बल्ले से निकलता हुआ रविंद्र संगीत बहुत ही मधुर। टॉप 7 में सिर्फ एक ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, उन्हें कहा गया आप ऊपर बल्लेबाजी करिए, नंबर 6 7 पे नहीं, हमें वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का फायदा उठाने दीजिए। उठाया बहुत बढ़िया तरीके से भारत ने भी, और रविंद्र जडेजा ने भी। कमाल का ये शॉट, जरूर गेंद आगे थी, जिद नहीं थी, स्ट्रगल कर रहे थे गेंदबाज, लेकिन सोच जडेजा की बिल्कुल सही। नसीम शाह स्ट्रगल कर रहे हैं। एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, यू फील फॉर हिम, सहानुभूति जरूर होती है, क्योंकि भाग नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत एविडेंट है। पर वो देश को खेलने का जो जज्बे की आपने बात की, आज वो पीठ दिखा के जा नहीं सकते ना, ओवर तो पूरा करना है। 21 रन चाहिए 13 गेंदों में। लिंपिंग, परेशानी है। इंजरीज पहले तो हो चुके हैं इस यूनिट में। 18 के बाद 127 पर 4। उनके हाथ में गेंद है, अभी कार्तिक ने आना है, फिर चहल, भूवी, आवेश, अर्शदीप, वहां तक तो बारी ना जाए तो बेहतर, क्योंकि 12 गेंदों में चाहिए 21 रन। हारिस राव, एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है। मोबाइल की शॉप पे काम किया करते थे जनाब, पिताजी को से छुप के क्रिकेट खेलने जाया करते थे। बीबीएल की टीम में नेट के बॉलर थे, और फिर वहां से लाहौर कलंदर्स, दमादम मस्त कलंदर। मिलेगा। ये थोड़ा सा नर्व्स वाला मैच आ गया। अभी भी नवाज का 1 ओवर बचा है, 20वां ओवर, मतलब वो डालेंगे आखिरी ओवर। लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 सेट बल्लेबाजों के सामने, तो यहाँ पे भी दोनों बल्लेबाज अगर 8-9 रन भी निकालते हैं तो आखिर में फिर भी वो गेम पूरी तरह से आप पकड़ सकते हैं। ये गेम को चलाया है, बाबर आजम ने पूरी कोशिश की है कि नवाज को थोड़ा और पीछे धकेला जाए, जो बाकी तेज गेंदबाज है वो गेंदबाजी करे, क्योंकि वो हार्ड लेन का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, गेम में बना के रख रहे हैं। लेकिन
भारत अभी बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेगा, स्पेशली जो छक्का लगाया रविंद्र जडेजा ने पिछली ओवर में, और ये जो साझेदारी चल रही है। और एक सीख है यहाँ पे, हम सबके लिए भी है, शायद भारतीय टीम के लिए भी है। चलिए एक बार फिर शायद संदेश जाएगा। इस बार रवि बिश्नोई, वो सलाहकार बदल रहे हैं वैसे, लेकिन शायद संदेश वही का वही होगा। ऋषभ पंत, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा। वो बैट शायद स्लिप कर रहा है, पसीना काफी, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पर टेम्पलेट इरफान को टेम्पलेट था कि इस प्रकार से खेलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 128 रन है, 4 आउट हुए, 18.1 ओवर है। इसका अर्थ ये है कि जब आप चेस कर रहे हैं तो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे आपको मैच जीतना है। वो रोहित का शॉट, वो कोहली का शॉट अभी थोड़ा सा चुभ रहा है वो शॉट। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी T20 क्रिकेट में चाहे आप कैसी भी टीम हो, वहां पे आपको एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो गेम चलाए। खैर, ये आगे और इसके बारे में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, चेस करते हुए चीजें बदल जाती है। थ्रो करते तो एक और मिलता, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर थी। रोहित शर्मा 10 गेंदे 19 रन, 10 में 19। ये जो जीत प्रतिशत है ये इस बात को जहन में रख रही है किसके ओवर्स बचे हैं। नवाज ने कितनी बार 20वां ओवर डाला होगा, क्या डाला होगा और कैसा डाला होगा। वो थोड़ा फैक्टर आता ही है ना खेलने का किसी भी गेंदबाज को, लेकिन अगर आपने वो काफी गेंदें खेल चुकी है अपनी पारी पे, तो फिर चाहे वो गेंदबाज नया हो, पुराना हो, एक्स फैक्टर लेके आता हो, मिस्ट्री लेके आता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। जडेजा 28 गेंदे, हार्दिक 11 गेंदे। ये उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, जहां मारना चाहते थे वहां गई भी नहीं, लेकिन रन है महत्वपूर्ण, बहुमूल्य कितने हैं। बाउंड्री चेक किया जाएगा दोबारा, लेकिन रन्स तो है, कितने हैं इस पे सवाल है। ये माहौल देखे तो लग रहा है 4 रन, बहुमूल्य 4 रन, बिल्कुल चौका है ये। कोशिश पूरी फील्डर की, लेकिन ये जो ताकत थी हार्दिक पांड्या की, अच्छी पोजीशन में ना आने के बावजूद भी ये चौका बटोरा हार्दिक पांड्या ने और उनकी ताकत ने। हार्दिक पांड्या उनके जैसा कोई हार्ड एज नहीं है, नहीं मारना था, वो कवर्स के ऊपर से थोड़ी ना शॉट मारा था। चौका फिर भी मिल गया क्योंकि लेंथ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल रूम नहीं, हार्ड लेंथ। वो अगला पैर हटा के वो चाहते थे कि अगर टाइम मिले तो लेग साइड पे खेलूं, गेंद आई ऑफ साइड पे, लेकिन ताकत के साथ ये कवर्स के ऊपर से चौका। जय शाह जी भी बोल रहे थे जय हो, भारत की विजय हो। ये अच्छा शॉट है, ये तीखा शॉट है, तेज शॉट है, ये भी चौके वाला शॉट है। ये मुझे लगता है पड़ोसी मुल्क को थोड़ा सा चौंकाने वाला चौका है, क्योंकि अब माहौल बदलेगा। 8 गेंदों में 11 रन, हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या। माहौल बदल चुका है। यही तो शॉट लगाना चाहते थे लेग साइड पे हार्दिक पांड्या, कुछ ऐसी ही तो लाइन और लेंथ थी जो इससे पहले ऑफ साइड पे चौका लगाया हार्दिक ने। अब की बार यहाँ पे लेग साइड पे लॉन्ग ऑन की बगल में से एक चौका, 2 लगातार बाउंड्रीज, सीधा सीधा वो रिक्वायर्ड रन रेट पे असर करती हुई। ये भी मुझे लग रहा है वाइड ना हो जाए कहीं, देखिए जरा। 1 बाउंसर, भाग्य का साथ मिला है। इतना सा नन्ना सा महीन सा किनारा लगता तो थर्ड मैन फाइन लेग दोनों सर्कल में थे। क्योंकि वो इतनी गति से भी गेंद आ रही थी, 140 के ऊपर, 143, लेकिन वो गति से बीट किया। वो उछाल भी था, साइड से देखना जरूर होगा कितनी ऊपर से गेंद गई वो। 5वां फील्डर सर्कल के अंदर, ये समस्या है। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल में, मिड ऑफ सर्कल में यॉर्कर नहीं डाल सकते, लेंथ गेंद डालनी पड़ती है, फिर ऐसा शॉट लगता है, कड़क लगता है। शॉट नहीं, ये झटका है, और ये झटका महसूस हुआ है। हार्दिक मात्र 7 रन चाहिए अब 6 गेंदों में। आखिरी ओवर नवाज का होगा और जीत नवाजी जाएगी शायद भारत के खाते में। अब की बार 8वीं बार, और ये 50 रनों की साझेदारी इसी कड़क शॉट के साथ पूरी।
तीसरा चौका इस ओवर का। हार्दिक पांड्या के बल्ले से यहाँ पे जरा भी पैर नहीं हिलाए, पोजीशन नहीं हिलाए, सेट हो चुके हैं और ये अच्छी गेंद को तब्दील किया चौके में। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा भारत की जीत के तरफ भागते हुए। 147 बनाए थे पाकिस्तान ने, पूरे 20 ओवर खेल नहीं पाए थे। अंत में दानी के कुछ रन थे, कुछ हारिस राउफ के थे, उसके चलते थोड़ा सम्मानजनक स्कोर बना, लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिला। फिर नवाज की 2 विकेट्स, मैच में जान, कहानी में ट्विस्ट, लेकिन उसके बाद सर रविंद्र जाडेजा का जादू सर चढ़ के बोला है और साथ में आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ राइज। और ये जो साझेदारी 52 रनों की, मिसफील्ड था, वो चौका था, अच्छे शॉट देखने को मिले। ये जो 5वां फील्डर अंदर आया था, दबाव में थे नसीम, उनके सामने चौका, फिर छक्का और उसके बाद ये जो 3 चौके थे जिसने गेम पूरी तरह से भारत की तरफ पलट दिया। कमाल की ये बल्लेबाजी, बेहतरीन ये साझेदारी। अभी वैसे भी हम तो स्वतंत्रता का महोत्सव सेलिब्रेट करके आ रहे हैं। तिरंगा हर घर पे लहराया गया था, तो गर्व से सीना चौड़ा था। 308 दिन वो हार की टीस रही है मन में, क्योंकि इसी मैदान पर 10 विकेट से मुकाबला हारे थे। वो वर्ल्ड कप का मैच था, ये एशिया कप का मुकाबला है। नवाज आए हैं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाए हैं। रविंद्र जाडेजा 2 विकेट ऑलरेडी आ चुके थे, वो पहले रोहित, बाद में कोहली, अब रविंद्र जाडेजा। 7 रन चाहिए, गेंदें बची हैं 5। दिनेश कार्तिक आएंगे। हार्दिक पांड्या के चेहरे पे वो स्माइल वो इसलिए क्योंकि ये मारने वाली गेंद थी। रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर का इंतजार कर रहे थे, बड़ा शॉट लगाने का, मैच को खत्म करने का। पहले मायूसी हार्दिक पांड्या के चेहरे पे, फिर थोड़ी स्माइल ये कहते हुए कि क्या वो मारने वाली गेंद मिस कर गए। लेकिन रविंद्र जडेजा, ये बहुत अच्छी पारी इनकी समाप्त। 35 रनों की ऊपर बल्लेबाजी करने आए थे, भारत को पूरी तरह से गेम में बनाए रखा। दिनेश कार्तिक अपने फॉर्म के साथ क्रीज पे जाते हुए। फिनिशर तो अब आए हैं, फिनिश करने आए हैं। ये कहानी में हल्का सा ट्विस्ट, थोड़ा सा रोमांच। रविवार है, हमने कहा था रोमांचक होगा। ये 20वां ओवर चल रहा है, 5 गेंदें बची हैं। All 3 results possible. India win, Pakistan win. It could be a tie. दिनेश कार्तिक, इनसे लंबा T20 अंतरराष्ट्रीय करियर किसी खिलाड़ी का आज तक हुआ नहीं। 15 साल ये चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज जो मुकाबला जीतेगा, ऑफ कोर्स एक कदम बढ़ा लेगा वो सुपर 4 में पहुंचने के लिए। हांगकांग से अगला मुकाबला भारत का, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मुकाबला परसों वो शारजा में होगा। फिर A1 वर्सेस A2, इंडिया पाकिस्तान, गुड चांस, यही मैदान अगला रविवार। और फिर एक और 11 तारीख को फाइनल है। उम्मीद तो सबने ये बांधी है कि अभी तक नहीं हुआ है, 14 एडिशंस हो चुके हैं एशिया कप के, लेकिन एक बार तो हो जाए इंडिया पाकिस्तान फाइनल इस बार। स्पिन अच्छा खेलते हैं दिनेश कार्तिक, आते ही बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। एक्सीलेटर पे 5वें गियर पे पांव रख ही देते हैं, जरूरत भी उसकी अभी। दिनेश कार्तिक 1 रन मिला है। वो बंदा तो वैसे वेस्ट इंडीज से सेट होकर आया। हर जगह इन्होंने रन्स बनाए हैं। रविंद्र जाडेजा की आज महत्वपूर्ण पारी थी, नंबर 4 पे इनको भेजा। थोड़ी सी हैरानी थी कि इतनी ऊपर क्यों आए, पर आए छाए, यहाँ थोड़ा सा जोश आया। जडेजा जरूर थोड़े से निराश, लेकिन अपना काम तो करके गए। जो उन पे जिम्मेदारी रखी थी भारतीय टीम मैनेजमेंट ने, उसे कुछ हद तक पूरा किया। ज्यादा बेहतर वो महसूस करते अगर मैच को फिनिश करते, लेकिन हार्दिक पांड्या सेट बल्लेबाज अब क्रीज पे। 5 खिलाड़ी सर्कल में, ऑफ साइड पे कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं, लॉन्ग ऑफ को छोड़कर अपने आप को रूम दिया है, जोर से शॉट लगाया, फील्डर को ढूंढ निकाला है। 4 गेंदें 6 रन थे, अब 3 गेंदों में 6 चाहिए। 1 हिट अवे फ्रॉम अ विक्ट्री, लेकिन आसान तो वो भी नहीं। इंटरेस्टिंग कर दिया है नवाज ने, सबको लग रहा था, हमने भी बात की नवाज आएंगे,
थोड़े रन खाएंगे, लेकिन शुरुआत में पहली गेंद पे वो विकेट चटकाई। नवाज नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए उम्मीद की आवाज है। रोहित कोहली, एक शॉट, ये वाला शॉट, ये अच्छा शॉट है, फ्लैट शॉट है, 6 वाला शॉट है। हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, हार्दिक द ऑलराउंडर पांड्या, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पांड्या। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि 308 दिनों की टीस थी ये, यही तो मैदान था, ऐसी एक शाम थी जहां पे 10 विकेट से जीता था पाकिस्तान। भारतीय मंसूबों में फेरा था पानी, 28 साल के इतिहास को बदला था पाकिस्तान ने। लेकिन अब की बार 9वीं बार भारत ने पाकिस्तान को हराया एशिया कप में, 8वीं बार हराया है T20 इंटरनेशनल में। आज की शाम भारत के नाम कहते हैं